Hello and welcome to Perfection IES and welcome to today's The Hindu Analysis. आज 21st of the August, Monday, we will discuss today's most important news and editorials both. ठीक है, आज का अगर आप न्यूज़ देखो तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया था ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में है or the legislative reforms which have been brought by the Indian Parliament. We will discuss all of them. Then we will also discuss the Kachatiwa Island, where it is, why is it in news, and what's the controversy behind this island. Plus, we will also discuss the Indian economy से दो editorials. One is from inflation. One is about inflation. This was an article with regard to the high rise in pulses, price of pulses. Plus, we will also discuss the frictionless and paperless credit which RBI is now promoting. What does that mean? Science section में there are 5 articles. ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. ठीक है, वेदर दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वी हैव टू, वन आर्टिकल एंड वन न्यूज, वन एडिटोरियल एंड वन आर्टिकल अबाउट from the explained section of Hindu. Then we have also a news about moon exploration, an article editorial about Chandrayaan 3, and one more news about the Luna 25 crashing on the moon's surface. At the last, we will see the holy grail of science, which has been a shift, or which has been always an inquisitive set, or we can say inquisitive quest for the science. ठीक है, for the scientific community also. So let's move forward. ठीक है, so the first point and the first news was about pulses rising on prices. ठीक है, the rise of prices in pulses. And as we saw, पिछले 2 महीने में पर्टिकुलरली टोमेटो का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, और उसी के साथ साथ वी हैव ऑल्सो सीन दिस थिंग दैट टोमेटो के साथ साथ नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज द राइज इन द प्राइसेस ऑफ पल्सेस ऑल्सो. ठीक है, अब पल्सेस का प्राइस इंक्रीज होता है, टोमेटोज का प्राइस इंक्रीज होता है, तो दिस ऑल लीड्स टू इन्फ्लेशन. एंड विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज इट? इट इज रिटेल इन्फ्लेशन. इट्स retail inflation, and we have seen that 37% surge in the vegetable prices लास्ट जुलाई. ठीक है, तो जुलाई में हमने देखा 7.4% इंक्रीज हो गया था. 15 मंथ हाई 7.4% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ pulses. So now we have been continuously witnessing this thing that food price inflation जो है ऊपर जा रही है पिछले मतलब इस साल में, and particularly in the second quarter. Now the thing is कि from the basics, when we discuss newspaper in this सीरीज, जब भी आप परफेक्शन आईएएस की वेबसाइट यहाँ यूट्यूब चैनल पे आते हो और यहाँ पे न्यूज़पेपर डिस्कशन में आते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए और आप ये बखूबी जानते होगे दैट हम जब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो वी डिस्कस द न्यूज़पेपर इन टू पर्सपेक्टिव्स. वन इज द करंट अफेयर्स एंड अनदर इज द स्टैटिक पोर्शन. सो बोथ द थिंग्स आर डिस्कस्ड हियर. सो बैक टू स्टैटिक्स और बैक टू बेसिक्स. ठीक है, back to basics. What is there in the basics? What is the structural inflation? What is structural inflation? Structural inflation is that type of inflation which occurs due to imbalance in supply chain mechanism. ठीक है, maybe this color may not be visible here. So supply chain issues जब आएंगे, प्लस प्रोडक्शन प्रोसेस में इश्यूज आएंगे, and there will be issues which will lead to sustained increase in prices. Then comes the hyperinflation. ठीक है, what is hyperinflation? Hyperinflation is extreme rapid increase in prices. ठीक है, extremely, which leads to collapse of currency and economy. Extreme price rise. What is the deflation?
Deflation is actually the opposite of inflation. It is decrease of prices over a period of time. Decrease of prices. What is stagflation? This occurs when there is a combination of high inflation plus unemployment, which leads to stagnant economy. ठीक है. What is walking or trotting inflation? This walking or trotting inflation means a gradual and slow increase in prices. And this inflation is also associated with a growing economy, and this is always parallel to growth. ठीक है. Then comes the running and galloping inflation. अब ये running और galloping inflation क्या होती है? This is actually a this occurs. This is actually a rapid price increase which occurs over a short period. Rapid increase of prices. This actually causes sudden increase in demand. Actually caused by a sudden increase in demand. Then comes the runaway or hyperinflation. This is extreme rise in price, and this lead is due to instability or war. ठीक है. And then comes the misery index. What is misery index? Misery index क्या होता है? It's a measure of overall economic well-being of the population. ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पॉपुलेशन. और इसमें क्या चीजें कैलकुलेट की जाती है? फर्स्ट इज इन्फ्लेशन रेट, सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ठीक है. एंड द हायर द मिजरी इंडेक्स गोज, द वर्स द इकोनॉमिक कंडीशंस आर. ठीक. देन कम्स द डिफ्लेशनरी गैप. Deflationary gap and inflationary gap, these are actually inflationary gap and deflationary gap, these are two terms which are actually associated with GDP and कंपैरिजन ऑफ इन्फ्लेशन. जब हम जीडीपी और इन्फ्लेशन का कंपैरिजन करते हैं तो इससे होता क्या है? ठीक है. इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप से क्या होता है? एक्चुअली में होता क्या है दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी. Therefore, the inflationary gap occurs when economy is producing above its potential. ठीक है. It means that economy is producing above its potential, which is leading to increased demand of goods and services. And deflationary gap is again the actual GDP and potential GDP, in which the deflationary gap occurs when the economy is producing below its potential. ठीक है. So the economy is producing below its potential production. And what is suppressed and repressed inflation? In which the inflation is kept under the control of government policies. And the suppressed and repressed inflation, जिसमें हम इन्फ्लेशन को इतना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्राइसेस को कंट्रोल करती है that the artificial control of this prices, this can burst at any point of time. And ये चीज़ हुई थी कहाँ पे? वेनेजुएला में. और एक्चुअल में वेनेजुएला ने ट्राई किया था टू सप्रेस द इन्फ्लेशन बाय सेटिंग प्राइस कंट्रोल्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू शॉर्टेज. हाउएवर, इससे हुआ क्या? इससे ब्लैक मार्केट का ग्रोथ हुआ. ठीक है. तो नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ बिल रीनेमिंग. एंड
the author here highlights this thing that जो एक क्रिमिनल लॉ बिल, क्रिमिनल लॉज पे 3 बिल्स आई है, इनका नाम हिंदी में रखना जरूरी नहीं था। ठीक है, एज वी सी दैट भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय साक्ष्य बिल, this is needless meddling because he gives his arguments as English is the language of the law of the courts, और कोर्ट्स में हम इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करते हैं। और जजेस जो कि किसी भी रीजन से बिलोंग कर सकते हैं, उनको अक्रॉस द कंट्री ट्रांसफर किया जाता है, और वो जब कहीं पे भी पहुंचते हैं, जाते हैं, दे फॉलो द कॉमन लॉ सिस्टम। ठीक है। और एक्चुअली में अगर आप देखो तो जितना भी लैंग्वेज के, जितना भी प्रेसिडेंट है लॉ का, वो सारा इंग्लिश लैंग्वेज में ही रखा गया है अभी तक। सो व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? इज इट एक्चुअली द नीड ऑफ द आर टू यूज हिंदी लैंग्वेज, और व्हाट्स इट एक्चुअली द हिंदी लैंग्वेज पुश और व्हाट? ठीक है, इज इट पुश टुवर्ड्स हिंदी लैंग्वेज और समथिंग डिफरेंट, है ना? तो इस चीज को देखेंगे थोड़ा सा। व्हाट वी विल सी इज, वी विल नॉट टॉक अबाउट दी थिंग्स दैट वेदर द रीनेमिंग ऑफ द बिल्स इज करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, हमें वो नहीं देखना है दैट अब ये जितना भी बिल्स में चेंज आया है, नाम चेंज हुआ है, इज दिस करेक्ट और इट्स एक्चुअली रॉन्ग। बट व्हाट वी विल सी इज दैट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट द लैंग्वेज, है ना, एंड व्हाट आर द लॉज विच आर मेड फॉर इम्प्रोवाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर आप देखो तो शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस है शेड्यूल 8 में, और 22 लैंग्वेजेस में से हिंदी इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेज। देन आर्टिकल 351 directly talks about this thing that it's the duty of union to encourage the spread of Hindi language। ठीक है, and then article 348 also talks about this thing that article 348 authorizes the president to the for the use of Hindi language। ठीक है, this provides article 348 clause 2 provides that the governor of the state may with previous consent of president, that is governor plus president का previous consent, may provide for this thing that the Hindi language can be used as official language in any state for official purposes in the proceedings of the court. Also, this can be used as for the official purpose in the proceedings of courts also। ठीक है, then the state or the high courts having its principal seat in the state, provided that the decrees, judgments or orders passed by such high court shall be in English। ठीक है, अभी के लिए द आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द डिक्रीज, जजमेंट्स, जितने भी ऑर्डर्स पास होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। बट द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट, गवर्नर with the previous consent of president can provide for this thing that Hindi can be promoted and Hindi can be authorized. The governor can authorize this thing that Hindi can be used as, so the power here lies with the governor। ठीक है, जो ये बोल सकते हैं दैट कोर्ट में हिंदी लैंग्वेज का यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। देन कम्स आर्टिकल 343 क्लॉज 1 विच टॉक्स अबाउट दिस थिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शall be the official language of union। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन विल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, then comes the official language act 1963, and this provides that the use of Hindi or official language of the state in addition to English, Hindi as official language
in addition to what? In addition to English, can be authorized by president, can be authorized by governor actually, with consent of president. ठीक है? And this can be provided for the judgments decrees made by the court. डन. तो यहां तक हमने बात की लेजिस्लेटिव प्रोविजंस की और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की. देन व्हाट वेर द की एफर्ट्स विच अभी तक जितना भी गवर्नमेंट ने एफर्ट लिया है फॉर प्रमोटिंग द रोल ऑफ लैंग्वेजेस, इधर हिंदी और अदर लैंग्वेजेस. ठीक है. तो द फर्स्ट थिंग वाज द थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो कोठारी कमीशन ने दिया था 1968 में, in which first language in educational institutions should be mother tongue. Then the second language in Hindi speaking states, ठीक है, it will be other than modern Indian language or English, and in non Hindi states it will be Hindi or English. ठीक है. So in Hindi speaking states it will be modern language, and in non Hindi states it will be Hindi or English. ठीक है. Then the third language for these states, in the Hindi speaking states it will be English or any modern language, and in the non Hindi speaking states it will be English or any other modern Indian language. ठीक है. In the Hindi speaking states it will be English plus modern, and in the non Hindi it will be a modern language or English language. ठीक है. Then comes the new education policy of 2020. अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या प्रमोट करती है? दिस टू हैड अटेम्प्ट्स टू प्रमोट हिंदी, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस. हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस. ठीक है. सो दिस national education policy, that is NEP, promotes the mother tongue or regional language would be for class 5 and possibly for class 8. ठीक है. तो मदर टंग जो होगी, this mother tongue will be promoted for what? Class 5 to class 8. Then NEP also decides to push for three language formula and to promote multilingualism and national unity. ठीक है. Moving to next news. Next news is about the island known as Kachathiu controversy island. What is this island about, and should we remember each and every point of this controversy of this island? No, we should not remember every point of this island, but yes, we should revise our own points. ठीक है. We should revise our own static points. ठीक है. Now the thing is कि where is this island located? It's located in Park Strait. और ये आइलैंड कहाँ लोकेट है? ये यहाँ पे लोकेटेड है बिटवीन इन द मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया. एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये जो आइलैंड है, ठीक है, ये जो हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर है विद श्रीलंका एंड बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, तो दैट बॉर्डर इज एक्चुअली लाइक दिस. इंटरनेशनल जो हमारा बॉर्डर लाइन है और जो हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है, ठीक है, तो दिस आइलैंड इज ऑन द बॉर्डर लाइन. ठीक है. तो नाउ द आर्टिकल अबाउट दिस आइलैंड केम, और इसमें लिखा क्या था? इट सेड दैट एक्चुअली अभी 18th ऑफ अगस्त को तमिलनाडु के जो सीएम है M.K. स्टालिन, ही रिवाइव्ड द डिबेट अबाउट दिस कच्छाथीवू आइलैंड.
अब कच्छाथीवु आइलैंड का जो डिबेट आया है, इसका मतलब क्या है और क्यों ये वापस रिवाइव हो रहा है कच्छाथीवु आइलैंड का डिबेट, और क्या चाहते हैं तमिलनाडु के सीएम। एक्चुअली द डिबेट इज अबाउट दिस आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड। ठीक है, तो इस आइलैंड में कोई नहीं रह रहा है और यहाँ की पॉपुलेशन कोई नहीं है। मैं इस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देन दिस इज अ बैरन आइलैंड और 285 एकड़ का आइलैंड है, प्लस इट्स जस्ट 14 नॉटिकल माइल्स ऑफ द रामेश्वरम। ठीक, ऐसा ही स्टेटमेंट यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। ठीक है, 2019 में यूपीएससी ने ऐसा ही एक स्टेटमेंट पूछा था अबाउट द ओशियन मीन टेम्परेचर। सेम क्वेश्चन, that the ocean mean temperature is collected from this place, which is located eastwards or westwards from Port Blair 200 or 180 or 165 kilometers away, and that too in the month of January to March, with the 26 degree being the average temperature or with the depth of this much of kilometers. So these statements are usually used by UPSC post 2019। 2019 के बाद से कुछ पैराग्राफ्स के फॉर्म में यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना चाहिए। नाउ वेयर इज दिस आइलैंड लोकेटेड एंड व्हाट आर द अदर आइलैंड ग्रुप्स इन दिस रीजन। ठीक है, so if you can see the map on your screens, the Kachatiwu island, if you look closely, this is the island। ठीक है, और इस आइलैंड के ऊपर अगर आप देखो तो देर इज डेल्फ आइलैंड, और इस आइलैंड के नीचे अगर आप देखो तो दिस इज धनुषकोटी। धनुषकोटी के बाद दिस इज राम सेतु, एंड राम सेतु के बाद दिस इज फर्स्ट आइलैंड। फर्स्ट आइलैंड के बाद वी हैव ओनली वन थिंग जो हमें याद रखना है, दैट इज दिस मन्नार आइलैंड। डन, बस। इसके बाद विल गो बैक टू आवर डिस्कशन, एंड डिस्कशन में वी विल सी द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव्स। ठीक है, और पर्टिकुलरली अंडमान आइलैंड्स। यहाँ पे इस चीज को याद रखना है दैट व्हाट आर द डिफरेंट चैनल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट पासेस बिटवीन द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऊपर अगर आप देखो तो बे ऑफ बंगाल वाले ये अरेबियन सी वाले रीजन में देर इज लक्षद्वीप आइलैंड विच इज अ कोरल आइलैंड, और 9 डिग्री चैनल सेपरेट करती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करती है आपस में मिनिकॉय और मालदीव्स को। ठीक है, दैट्स इट अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड। However, in the Andaman group, if you see, the northernmost island is Narkondam Island, which is actually an extinct volcano. उसके बाद आता है नॉर्थ अंडमान। These the three Andamans, North, Middle and South Andaman, are the part of Great Andamans। और मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, इन दोनों के बीच में यहाँ पे पड़ता है बारन आइलैंड। ठीक है, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान के बीच में पड़ता है बारन आइलैंड, दैट टू ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ बोथ ऑफ दीज। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर आप रफली स्केच करो तो दिस विल बी हेयर, है ना। देन कम्स दी लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को बीच में जो सेपरेट करता है दैट इज डंकन पास, जिसको याद रखना है। और उसके बाद आता है नीचे लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान के बाद आता है नीचे निकोबार, और निकोबार आइलैंड में भी दी लिटिल अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो बीच में सेपरेट करता है दैट इज 10 डिग्री चैनल, एंड दिस होल इज कॉल्ड एज दिस ऑल अंडमान सी। और 10 डिग्री चैनल के नीचे जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है दैट इज कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार के नीचे देर इज लिटिल निकोबार, एंड एट द बॉटम देर इज ग्रेट निकोबार।
और ग्रेट निकोबार का सबसे बॉटम वाला एरिया जो है दैट इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट वाला पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट। डन। यहाँ तक हमारा जो है डिस्कशन हो गया अबाउट द प्लेसेस इन न्यूज़। नाउ कमिंग टू द दिस इकोनॉमी सेक्शन। इकोनॉमी में से आरबीआई हैज कम अप विद अ न्यू पायलट फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्रोजेक्ट। और ये क्या चीज़ है, ये क्रेडिट प्रोजेक्ट और फ्रिक्शनलेस क्रेडिट क्या होता है जो आरबीआई लेके आया है अभी? व्हाट इज ऑल अबाउट दिस फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, वी विल स्टडी दैट। तो आरबीआई का जो नया है न्यू पायलट फॉर frictionless credit, what does this mean? So this is how does the central bank plan to make credit appraisal easier. What is credit appraisal? Credit appraisal is actually the credit check on the basis of which you will receive a loan. आपको किस बेसिस पे लोन मिलता है उसी चीज को बोलते हैं क्रेडिट अप्रेजल। अगर आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में, दिस इज highlighted here that RBI's program or pilot program to evaluate the feasibility and functionality of public technological platforms for frictionless credit। ठीक है, तो जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म होगा, अब अभी तक अगर आप देखो तो देर वेर लाइक बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आए थे, लाइक बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी जिसमें बोला गया था दैट दी जैसे 10 मिनट में लोन या 1 मिनट में लोन पास होना और कैशलेस लोन पास होना। ठीक है, और लाइक दैट आपको ऐसे तो बहुत सारे कैंपेन्स आए थे। ठीक है, आरबीआई के भी प्रोग्राम्स आए थे या प्राइवेट सेक्टर में भी। इफ यू सी दैट देर इज कैशलेस क्रेडिट विच इज ऑन राइज। प्लस अगर आप अभी देखो तो क्रेडिट कार्ड्स, है ना, इस साल जो क्रेडिट कार्ड्स का बिल पेमेंट था बहुत हाई लेवल पे गया है, लाइक द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैव बीन ब्रोकन व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रेडिट पेमेंट्स। ठीक है, now the thing is this cashless credit or providing the loans with frequency or providing the loans with increase, what will this help? This will help in increasing the money supply, है ना। दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग दी कॉम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट। और इससे होगा क्या? दिस विल हेल्प इन द फ्लो ऑफ रिक्वायर्ड डिजिटल इंफॉर्मेशन टू लेंडर्स। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अगर आपके पास जो लेंडर्स हैं जो पैसा देना चाहते हैं, जो लोन लेंड आउट करना चाहते हैं, जो पैसा लोन पे देना चाहते हैं, उनके पास जब इंफॉर्मेशन होगा उन लोगों का जो बोरोवर्स है, जब उनका अप्रेजल जो रिपोर्ट होता है ना, क्रेडिट अप्रेजल। व्हाट इज दिस क्रेडिट अप्रेजल? दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी known as credit appraisal, that on what basis will you get a loan, what is the prospects of the borrower। जो लोन ले रहा है, जो कर्जा उठा रहा है, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है, वो लोन वापस देता है नहीं देता है, उसका रीपेमेंट का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, दिस एडहर्स टू द क्रेडिट अग्रीमेंट्स, है ना, एंड देन द इंटरेस्ट इनकम एंड दिस ऑल्सो इम्पैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ द banks। now this will improvise the interest income and this will also improvise the balance sheet pictures of the banks। उससे क्या होगा, उससे बैंकिंग का भी स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, प्लस ओनली दोज विल बी गेटिंग ये लोन हु हैव गुड क्रेडिट हिस्ट्री एज बोरोवर्स। क्यों? बिकॉज improved access to information will be provided to lenders। अब लेंडर्स के पास इंफॉर्मेशन होगी तो इस जो स्ट्रक्चर है अभी, जो ये सॉफ्टवेयर या ओपन प्लेटफॉर्म आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है, ये ओपन प्लेटफॉर्म में क्या क्या होगा, इसमें ओपन आर्किटेक्चर होगा, एप्लीकेशन होगी, एपीआई बेस्ड इंटरफेस होगा। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जितने भी लोग लोन देना चाहते हैं, चाहे वो लोन डेयरी सेक्टर में दे, एमएसएमई में दे, वो पर्सनल लोन दे, होम लोन दे, ये सब चीजें जो है इंटीग्रेट हो जाएंगी एक जगह पे। इसके इंटीग्रेशन के साथ साथ आधार बेस्ड ई साइनिंग, लैंड रिकॉर्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सैटेलाइट डेटा, पैन वैलिडेशन। ठीक है, ये सब चीजें, अकाउंट एग्रीगेशन, हर एक चीज इसी पायलट प्रोग्राम में चलेगी। और ये क्या है, ये एक प्लग एंड प्ले मॉडल है ना, कि आपने एक बार साइन इन कर लिया, आपको लोन चाहिए, आपको बस वहीं पे जाना है, अप्लाई करना है, वहां पे लोन देने वाला भी होगा और लोन लेने वाला भी होगा। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये अभी आरबीआई चला रहा है कहाँ पे? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी एंड महाराष्ट्र। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट।
ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्ट मेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, तो अभी तक अगर आप देखो तो ये करना ही क्यों है ऐसा, बिकॉज इफ यू सी दैट अराउंड 6% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ लोन इज जस्ट डाइवर्टेड एज द कॉस्ट अराउंड द लोन। ठीक है, 2 से 4 हफ्ते लगते हैं लोन पास होने में, और 6% जो टोटल वैल्यू होता है लोन का वो चला जाता है लोन को पास कराने में। ठीक है, दैट इज ओवर एंड अबव कॉस्ट ऑफ गेटिंग क्रेडिट, जो कि खत्म हो जाएगा इस चीज के आने के बाद, इस पायलट प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद। ठीक है, देन कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो नेक्स्ट एडिटोरियल, दिस नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट generative AI systems. What are the generative AI systems? These are those systems which generate new content. ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और पोर्टल्स, ठीक है, जो इंटरैक्टिव इन नेचर। इट्स जस्ट लाइक सिंपली एक आपने कोई आर्टिजन लिया, ठीक है, आपने कोई भी आर्टिजन लिया, चाहे वो आप कंस्ट्रक्शन का ले लो, कंस्ट्रक्शन वर्कर है जिसके पास स्किल है दीवार बनाने का, उसके पास स्किल है बिल्डिंग बनाने का। ठीक है, अब इस बंदे के पास स्किल है बिल्डिंग बनाने का, और इसके साथ आपने इसको सारे मटेरियल रिसोर्सेज दे दिए। ठीक है, सारे रिसोर्सेज दे दिया, और रिसोर्सेज के साथ साथ आपने इसको ह्यूमन रिसोर्स भी दे दिया, इंजीनियर भी दे दिया, आपने इसको ईंटा दे दिया, सीमेंट दे दिया, सब कुछ हर एक मटेरियल रिसोर्स दे दिया जितना भी इसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है और इसको आपने एक डिजाइन दिया। व्हाट इज दिस डिजाइन? दिस इज एक्चुअली प्रॉम्प्ट, विच वी कॉल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब ये क्या होता है ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। अब ये जो डिजाइन है, आपने इसको बोला कि इस डिजाइन पे मुझे घर बनाना है और इस डिजाइन पे मुझे घर बना के दो, तो वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो घर उसी डिजाइन पे बनाएगा। ठीक है, जैसा आपने उनको जितना भी आपने बोला होगा, बेडरूम कितने चाहिए, मास्टर बेडरूम कौन सा होगा, कितने बीएचके का घर चाहिए, सीढ़ी कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज आपने उसको डिजाइन पे करके दे दी, प्लस आपने उसको सारे रिसोर्सेज दे दिए, जितने भी चाहिए होते थे उसको, उतने सारे रिसोर्सेज आपने उसको दे दिए। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपने उसको एक कमांड दे दिया और आपने उसको बोला कि मुझे जनरेट करके दो एक बिल्डिंग। And same is the case with these generative artificial intelligence systems. These are actually softwares, portals, जहाँ पे आप अपना prompt enter करते हो। prompt means a command enter करते हो, वो command जिससे उसको समझ आता है कि आपके bits, कि आपको क्या information चाहिए, किस type में information चाहिए, और then this will use the large data on the internet, और उस पूरे डेटा को यूज करके इट कैन जनरेट इमेज, इट कैन जनरेट ऑडियो फाइल्स, इट कैन जनरेट टेक्स्ट फाइल्स, एंड इट विल गिव यू कंटेंट बेस्ड ऑन दैट थिंग ओनली। ठीक है, आप बोलोगे ऐसे लिखना है तो ये ऐसे लिख के देगा, आप बोलोगे कोई फोटो चाहिए तो ये फोटो बना के देगा। Why is so? Because this comes under the advanced generative models or generative adversarial networks plus variational auto encoders. These are the variants of the generative artificial intelligence. अब होता क्या है एक्चुअल में? दिस इज बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। ठीक है, और दिस जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, दे आर ट्रेन्ड, फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना होगा कि मशीन लर्निंग कैसे ट्रेन करती है इस सॉफ्टवेयर को, ये सॉफ्टवेयर ट्रेन कैसे होता है। पर्टिकुलरली व्हाट वी डू इज वी गिव हिम दिस सॉफ्टवेयर एज इनपुट, और इनपुट में हम इसको बहुत सारी इमेजेस का लाइक बहुत सारी इमेजेस देते हैं, बहुत सारी इमेजेस लाइक बहुत सारे फोटोग्राफ्स, पॉपुलेशन का डेटाबेस दे दिया जिसमें सारे लोगों के फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, और फिर इसको एक डिटेल्ड नोट देते हैं कि एक बंदा था हिस्ट्री में, फॉर एग्जांपल कोई इंसान था हिस्ट्री में, या कहीं पे कोई इंसान है। जैसे आप किसी इंसान को बोलते हो जब क्राइम सीन होता है, तो क्राइम सीन में क्या होता है कि आप स्केच बनवाते, लाइक कहीं पे भी जब कोई क्राइम सीन होता है तो पुलिस क्या करती है, एक पेंटर को लेके आती है और उस इंसान को लेके आती है जिसने उस क्रिमिनल को देखा होता है, वो विटनेस होता है। देन दे आस्क दैट पर्सन कि आप इसका डिटेल दो, इस बंदे का डिटेल दो जो आपने देखा। देन ही डिस्क्राइब्स
कि उसके चीक्स कैसे थे, उसका फेस कैसा था, लॉन्ग था, शॉर्ट था, उसका फेस ओवल शेप था, कैसा था, उसके आईब्राउज कैसे थे, आंखें कैसी थी। और जो वो पेंटर होता है वो उसका स्केच बना देता है। सिमिलरली हम भी यहाँ पे इस एआई सिस्टम को सेम तरीके का इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई रूलर था इससे पहले जो दिखने में ऐसा था, उसका हाइट इतना था, वो कपड़े ऐसे पहनता था, देन ये आपको वहां से एक इमेज जनरेट करके देगी। लास्ट ईयर ओनली 2022 में ही और 2023 के इनिशियल मंथ्स में, लाइक अप्रैल मई में बहुत सारे फोटोज आ गए थे चंद्रगुप्त के, कौटिल्य के। बहुत सारे फोटोग्राफ्स आ गए थे ऐसे जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जनरेट किए थे। अब अभी जुगलबंदी नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये जुगलबंदी क्या करेगा, दिस इज एक्चुअली बीइंग रन इन इंडिया और इसको चला रहा है चैट जीपीटी। जुगलबंदी का मतलब क्या है? जुगलबंदी एक्चुअल में इंडियन म्यूजिक में यूज होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो डांसर होता है और जो तबला वादक होता है, जो तबला बजा रहा होता है, तो दोनों आपस में म्यूजिकल नोट्स पे स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। जैसा वो तबला वादक तबला बजाएगा वैसे ही वो स्टेप्स लेगा कौन, जो डांसर होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे ये जुगलबंदी जो है किस डांस का फीचर है? इज इट फ्रॉम कथक, कथकली, और विच घराना, पर्टिकुलरली हिंदुस्तानी म्यूजिक में कौन से घराने से बिलोंग करता है जुगलबंदी? अब जो ये जुगलबंदी सॉफ्टवेयर या ये पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है जिसको चैट जीपीटी चला रहा है, ये क्या कर रहा है? दिस इज एक्चुअली ए यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जो अभी क्या कर रहा है, जो लोकल लैंग्वेज में क्वेरीज है एक्सेप्ट करता है लोकल लैंग्वेज की क्वेरीज। लाइक किसी ने कोई क्वेरी दी गुजराती में, क्वेरी दी हिंदी में, क्वेरी दी तमिल में, उस चीज को ये पहले ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, फिर समझेगा, फिर वापस इसका आंसर निकाल के उसको नेटिव लैंग्वेज में ही जवाब देगा। दैट इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दैट इज जनरेटिव एआई, ठीक है। अब इस जनरेटिव एआई के कुछ कंसर्न्स है, ठीक है, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी है। अब कंसर्न क्या है जो अभी इस ओपिनियन में हाईलाइट हुआ है, ठीक है, दैट दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और एआई पावर्ड टूल्स दे माइट इनेबल बैड एक्टर्स, ठीक है। अब ये बैड एक्टर्स को इनेबल करेंगे टू क्रिएट आर्टिफिशियल एंटिटीज। आर्टिफिशियल एंटिटीज मतलब ये पीछे रोबोट्स बना देंगे। रोबोट को, रोबोट का जो बेस होगा, जो उसका एक्सेस होगा किसी भी चीज को लेके, उससे आप कुछ भी पूछो, उसको कोई काम करना है, वो इंटरनेट सर्फिंग कर रहा है और उसको कोई क्वेश्चन आता है सामने, ठीक है, तो वो उस चीज का जवाब या वो उस चीज को दी दिस एनी सॉफ्टवेयर और एनी वेबसाइट जिसको वो रोबोट एक्सेस कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर या वो वेबसाइट जिसको वो एक्सेस कर रहा है वो कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती है। वो सॉफ्टवेयर या वो वेबसाइट इसरो की भी हो सकती है, वो वेबसाइट किसी हाई गवर्नमेंट लाइक सीक्रेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट हो सकती है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू नो दैट these AI powered tools they learn and they know how to learn things better, that is the point जहाँ पे they can perform the bad actors। और वो क्या करेंगे, they will keep a watch on those websites, they will mimic the activities जो वहाँ पे लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग इसरो की वेबसाइट को लाइक एक्सेस कर रहे हैं, उस वेबसाइट को या किसी भी और वेबसाइट को हैक करने में these tools can be used and they will create harms and they will like spread misinformation or disinformation, or they will also spread the security hacks, or they will violate the security hacks. Like in USA, an AI generated image of the Pentagon burning spooked equity markets, and this fake Twitter and Instagram users promulgating strong political views have been reposted millions of times, contributing to polarized politics online। अब क्या हुआ, टेलीग्राम, ये ट्विटर और इंस्टाग्राम के फेक यूजर्स बनाए, फेक यूजर्स बनाए, उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए कुछ इमेजेस, उन इमेजेस को रीपोस्ट करते गए मिलियंस ऑफ द टाइम्स, और उसकी वजह से क्या हुआ, क्या होगा, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल ओपिनियन जो है डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। एंड सिमिलर थिंग हैपेंड इन टर्की ऑल्सो रिसेंटली। इसमें भी क्या हुआ दैट
AI जनरेटेड डीप फेक्स वेर यूज्ड। अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है और वो हम इसके बाद जाएंगे, बट इसी से रिलेटेड देयर इज वन मोर एडिटोरियल which says that artificial intelligence is used to increase the frequency of acoustic side channel attacks। अब ये acoustic side channel attacks क्या होते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर ये आपके लैपटॉप में रहेगा। अब लैपटॉप में रहा, फिर ये क्या स्टडी करेगा? ये स्टडी करेगा आप कौन सा की कितनी बार प्रेस कर रहे हो। और ये कैसे स्टडी करेगा? ये स्टडी करेगा विद द हेल्प ऑफ साउंड्स। ठीक है, तो जो कीपैड की साउंड होती है उस साउंड को ये स्टडी करेगा और उसके बाद उन की स्ट्रोक्स को जितनी बार आप कीज प्रेस करोगे उनको एनालाइज करेगा, और उसके बाद जो आपने उस टाइम पे कीबोर्ड पे लिखा होगा, भले आप अपनी स्क्रीन कितनी भी छिपा के रखो, ठीक है, या आपकी स्क्रीन किसी को विजिबल हो ना हो, this software, this artificial intelligence will learn the keystrokes and then it will interpret। और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जो आपने लिखी होगी, जो आपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लिखी होगी, एक दूसरे को मैसेज लिखा होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये चैट हुआ होगा, दिस विल बी लीक्ड। ठीक है, एंड व्हाट आर दीज अकोस्टिक साइड चैनल अटैक्स? दिस इज द मेथड ऑफ हैकिंग अ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम बेस्ड on the analysis of auxiliary systems like encryption methods। ठीक है, अब ये क्या करेगा? आपके डिवाइस में चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, पावर कंजप्शन हो आपके डिवाइस का, कि आपकी डिवाइस कब कितना पावर कंज्यूम करती है, आपने कौन सा डिवाइस इसके साथ कनेक्ट किया जिससे पावर हाई कंजप्शन हुई, लो कंजप्शन हुई, कीबोर्ड से कौन सी साउंड आई, प्रिंटर से क्या प्रिंट हुआ टू द टारगेट डिवाइस, है ना। ये हर एक चीज को स्टडी करते हैं और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपके कंप्यूटर पे वापस अटैक लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड इन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। जो हमें याद नहीं रखना है कि वहां पे क्या किया उन लोगों ने, क्या नहीं किया, बट यस, you can minimize the chances of these attacks by using touch based typing devices, or you can also use the laptops जिनमें कम साउंड आता हो when we talk about the keyboards, क्योंकि नॉन मैकेनिकल कीबोर्ड्स जब से यूज हुए तब से। प्लस यू कैन ऑल्सो यूज दी, जैसे कॉम्बिनेशन हुआ था अपर केस और लोअर केस के लिए शिफ्ट प्लस बाकी सारे बटन्स प्रेस करने का, तो उस टाइम पे भी डिफिकल्ट हो गया था दिस अकोस्टिक साइड चैनल अटैक्स का लाइक इनका करना, जो भी इनके पीछे लोग थे उस टाइम ये अटैक्स कम हो गए थे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अटैक्स कम हो गए थे। क्यों? बिकॉज इट बिकम्स हार्ड फॉर देम टू स्टडी सच एट सच लेवल, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही डिफरेंट होगा। शिफ्ट प्लस आप दूसरा की प्रेस कर रहे हो, आप न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स यूज करते हो, आप अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स के साथ साथ बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हो उस पासवर्ड में, तो वहां पे आपकी हेल्प हो जाएगी और आपका पासवर्ड जो है सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, बैक टू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दी व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई का एप्लीकेबिलिटी, दिस कैन जनरेट आर्ट एंड क्रिएटिविटी। और आर्ट एंड क्रिएटिविटी कैसे जनरेट करेगा? जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी गई है, डीप ड्रीम जनरेटर, है ना। अब ये डीप ड्रीम जनरेटर क्या है? This deep dream generator, this is an open source platform which works on deep learning. This works on deep learning, and this open source platform that uses deep learning algorithms to create dream like images। ठीक है, ये क्या बनाता है? दिस मेक्स ड्रीम लाइक इमेजेस। वैसे ही है डेल ई टू और डेल डॉट ई टू, दिस इज एन ए आई मॉडल फ्रॉम ओपन ए आई विच जनरेट्स न्यू इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट। आपने इसमें लिखना है, अपना डिस्क्रिप्शन डालना है कि कैसा आपको इमेज चाहिए, ये वैसा ही इमेज आपको बना के देगा। वैसे ही एक म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए देयर इज वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई टूल जिसका नाम है एम्पर म्यूजिक। एंड दिस एम्पर म्यूजिक एक्चुअली क्रिएट्स म्यूजिकल ट्रैक्स फ्रॉम प्री रिकॉर्डेड सैम्पल्स। आप इसको 10 से 15 20 सैंपल्स दे दो और ये आपको उसी बेसिस पे एक नया ट्यून बना के दे देगा। एवाइवा
Aviva uses artificial intelligence algorithms to compose original music in various genres and styles. Then computer graphics or 3D models or 3D graphics can be developed by these artificial intelligence. Healthcare may be there is accuracy and efficiency of medical diagnosis and treatments. Manufacturing and robotics is also there. Manufacturing robotics may you can automate, or the artificial intelligence can automate itself for such the for the process as to manufacture, और द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और द जो मैन्युफैक्चरिंग चैनल होता है उसमें ये क्या कर सकता है, ऑटोमेट कर सकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रिमूव ऑल द वर्कर्स विच आर इन द लाइन, विच आर इन लाइन. नाउ नेक्स्ट 3 एडिटोरियल्स विच रिलेट टू स्पेस ओनली. ठीक है, 3 न्यूज ऐसी आई थी. फर्स्ट वाज द न्यूज अबाउट चंद्रयान 3, दैट इज द ग्लाइड पाथ ऑफ चंद्रयान 3, कि अभी ये डिसेंड डाउन हो रहा है. ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड टच डाउन इज ऑन 23 अगस्त शाम को 6 बजे. वी विल टच डाउन द मून सेफली. Second news is about Luna 25, and third news is about the vagaries and dangers of space that Chandrayaan 3 is built to brave. ठीक है, तो now we will understand every bit of it, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आई है जिनको हमें समझना है. ठीक है, तो पहली चीज जो हमें समझनी है, दैट इज दी चंद्रयान 3. और चंद्रयान 3 के बारे में भी व्हाट वी विल स्टडी इज, पर्टिकुलरली जितना हमने पढ़ा है बेसिक्स में वो तो पढ़ लिया है. रोवर कौन सा है, लैंडर कौन सा है, प्रोपल्शन मॉड्यूल उसमें कितने पार्ट्स है, विक्रम लैंडर, विक्रम के अंदर क्या है, चेस्ट, रामबा, इल्सा, एपीएक्सएस, लिब्स और शेप, हर एक चीज हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, what I want you to study at this point of time is what are the different types of moon missions, है ना. तो what are the different types of moon missions? First is flyby mission. ठीक है, this moves or this passes moon without entering the orbit, without entering moon's orbit. ठीक है, एंड इट passes नियर बाय द मून. ठीक है, और अगर आप देखो तो इसमें ल्यूना 3 ऑफ रशिया और अर्लियर यूएसएसआर was a mission which was like that. A Pioneer 3 and 4 of United States was a flyby mission. Then comes the orbiter. Orbiter is a mission जो जाता है और it enters lunar orbit. It enters lunar orbit, और lunar orbit को enter करने के बाद what it does, it conducts studies of the moon's surface and atmosphere. और अगर आप देखो तो there is Chandrayaan 1 जो हमारा ऑर्बिटर मिशन था. Then comes the impact missions. These are actually the extension of orbiter missions, and the impact missions जो होते हैं, ठीक है, ये impact missions क्या काम करते हैं? They have instruments, and these impact missions involve instruments making an uncontrolled landing on moon. ठीक है, और अब ये मून पे अनकंट्रोल लैंडिंग करेंगे तो मतलब डायरेक्ट क्रैश करेंगे, और क्रैश करने से क्या होगा? दे प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा बिफोर बीइंग डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो डिस्ट्रॉय होने से पहले ये मून के इतना करीब जाके कुछ ऐसा डेटा प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें हेल्प होती है आगे की स्टडीज में. ठीक है, तो Chandrayaan 1 was moon's impact probe. ठीक है, had moon impact probe, और जिससे हमने स्टडी किया था इसका अप्रोच कि अब हम नेक्स्ट मिशन में क्या अप्रोच फॉलो करेंगे. देन कम्स द लैंडर्स. और ये लैंडर क्या होते हैं? लैंडर, दीज मिशंस एम फॉर सॉफ्ट लैंडिंग, है ना, एंड दे अलाउ फॉर क्लोज क्वार्टर ऑब्जर्वेशंस. और रशिया का, यूएसएसआर का ल्यूना 9 वाज अ मिशन जो विच वाज एक्चुअली द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून इन 1966.
Then rovers are specialized payloads that detach from landers and move independently on surface of moon. ठीक है. Then human missions, they carry humans, and NASA achieved this human mission feat with 6 successful landings from 1969 to 1972. 1969 से लेके 72 तक नासा ने 6 बार ह्यूमन लैंडिंग्स कराई. कहाँ पे? मून पे. एंड नाउ नासाज आर्टेमिस थर्ड is planned for 2025, और 2025 में दिस विल मार्क ह्यूमैनिटीज रिटर्न टू द मून. ठीक है. और दोबारा से हम मून पे जाएंगे. नाउ कम्स द न्यूज. और इस न्यूज में क्या है? दैट हाउ अ क्रैश हैपेंड ऑफ ल्यूना 25. अभी ल्यूना 25 का क्रैश हुआ है. अभी कल ये न्यूज आई थी. और ल्यूना 25 का क्रैश हुआ तो क्यों हुआ? ठीक है. और ल्यूना 25 और चंद्रयान 3, both these missions, they were targeted towards the moon. अब लूना 25 जो है, this was more faster in speed than the चंद्रयान 3. और ये क्यों फास्ट जा रहा था स्पीड में, और ये क्यों जल्दी पहुंचा? तो अगर आप देखो, जुलाई 14 को चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ और अगस्त 10 को, है ना, दिस ल्यूना 25 वाज लॉन्च्ड. तो अगर आप देखो तो लॉजिकली ये 26 डेज लेट निकला था ल्यूना 25 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. हाउएवर, चंद्रयान का जो लैंडिंग है दैट इज एक्सपेक्टेड एट 23 अगस्त, बट द लैंडिंग, प्रोबेबल लैंडिंग ऑफ ल्यूना 25 वाज एक्सपेक्टेड एट August 21, मतलब यस्टरडे. ठीक है, टुडे. हाउएवर, दो डिफरेंट चीजें हैं जो इनने यूज की. ठीक है. वन इज injection orbit, using the injection orbit, and then lunar orbit insertion, and second is frigate firing stage, and then orbit, injection orbit, and then lunar orbit insertion. तो एक्चुअल में हम जब चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो हमने यूज किया अपोजी मोटर. ठीक है. और इस मोटर से क्या होगा? वी विल गिव थ्रस्ट एंड वी विल चेंज द डायरेक्शन of this, we will change the orbit and we will give the thrust for changing the orbits from 1 to second to third to fourth, and then there will be one more thrust so that the satellite or the total mission, the Chandrayaan 3, will go and insert into lunar orbit. और ल्यूनर ऑर्बिट का इंसर्शन होने के बाद जब ये ल्यूनर ऑर्बिट में जाएगा, देन देयर विल बी स्लो डिसेंट, और स्लोली डिसेंट होने के बाद और लास्ट में ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा. हाउएवर, अगर आप ल्यूना 25 देखो तो दिस वाज जस्ट ओनली वन राउंड अराउंड द अर्थ, और देन ऑन द नेक्स्ट राउंड इट वाज डायरेक्टली इंजेक्शन ऑर्बिट, और यहाँ से यहाँ तक. अब इसमें डिफरेंस क्या है? ल्यूना 25 जल्दी क्यों पहुंचा और चंद्रयान 3 जल्दी क्यों नहीं पहुंचा, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वाई ल्यूना 25 हैज रीच्ड द मून फास्टर. ठीक है, इज रीचिंग द मून अर्लियर. तो सबसे पहली चीज थी डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी एडवांटेज. डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी एडवांटेज क्या है? डिस्पाइट बीइंग लॉन्च्ड ऑलमोस्ट अ मंथ लेटर देन चंद्रयान 3, ठीक है, एक महीना लेट लॉन्च होने के बाद भी इट वाज सेट टू रीच मून अर्लियर. व्हाई? क्योंकि इट यूज्ड द डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी. ठीक है, जो आपने यहाँ पे देखा, इसने कोई एनसर्कलिंग नहीं किया, ना अर्थ का ना मून का. इट यूज्ड अ डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी एंड वेंट टू मून. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज that it used the payload and fuel storage of Luna 25. Luna 25 का lift off mass was just 1750 kg जब ये अर्थ से उठा, एंड दिस इज सिग्निफिकेंटली लाइटर देन चंद्रयान. और चंद्रयान का कितना था? 3900 kg. तो मतलब डबल, है ना. और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि दिस वाज फास्टर इन इट्स स्पीड. देन द circuitous route of Chandrayaan 3 was that Chandrayaan took a longer route to compensate for its lower fuel reserve, है ना.
longer route to reserve fuel, and this elongated its journey by 22 days. 22 दिन इसका जर्नी ज्यादा हो गया. And then comes the lunar dawn timing. Lunar dawn timing. This actually is the Luna 25 got benefited from Luna 25 got benefited from an earlier lunar dawn at its landing site, and this ensured full solar panel power for its payload during the lunar day, which is equal to around 14 Earth days. तो ल्यूनर डॉन टाइमिंग क्या है कि ल्यूना 25 को जब लॉन्च किया गया तो उस टाइम पे इट वाज डॉन एट व्हाट एट दी ल्यूनर स्पेस. मून पे डॉन चल रहा था. तो डॉन मतलब सूरज उगने वाला था, और सूरज उगेगा तो अगले 14 दिन तक जो है डॉन रहेगी. और 14 दिन जो ट्रेवल किया ल्यूना 25 ने, दैट वाज अंडर फुल सोलर पैनल पावर. ठीक है. और इसको जो पावर पूरा मिला वो कहाँ से मिला? सोलर एनर्जी से, सन से पावर मिला, और उसकी वजह से भी ये फास्ट चला. ठीक है. तो दैट इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट व्हाट आर द लाइक माइन्यूट डिटेल्स बिहाइंड द स्पेस साइंस. अब यही चीज को आगे ले जाते हैं, और नाउ वी विल सी दैट अगर हमने देखा दैट जस्ट बाय गिविंग दी टच, और जस्ट बाय कैलकुलेटिंग दिस थिंग, दैट एक स्पेस फ्लाइट में अगर आपने फ्यूल, डॉन टाइमिंग, पेलोड, स्टोरेज, डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी, इन सब चीजों का ध्यान रखा तो आपकी फ्लाइट टाइमिंग या आपका मिशन कितना फास्ट हो सकता है. सेम इज द केस हेयर. और यहाँ पे इन डिटेल और इन मोर डिटेल द डेंजर्स ऑफ स्पेस. ठीक है. कि एक सैटेलाइट जब स्पेस में जाता है तो कितने सारे इश्यूज हो सकते हैं उस सैटेलाइट के साथ, और साइंटिस्ट जो है कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उससे पहले. This talks about the vagaries and dangers of space, and it says that a journey through space. और अगर ये जर्नी बस अर्थ से लेके मून तक ही है और इससे भी छोटी है, ये जर्नी तब भी एक एडवेंचर होता है. क्यों? बिकॉज एक स्पेसक्राफ्ट को अपनी नीड्स के साथ साथ बैलेंस करना पड़ता है उस हार्श क्लाइमेट को, जिसमें वैक्यूम, डिमांड्स ऑफ स्पेस फ्लाइट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, रेडिएशन, सोलर विंड और सोलर फ्लेयर्स आती है. प्लस यू विल ऑल्सो सी विस्कर्स. ठीक है. अब ये विस्कर्स क्या होती है वो हम देखेंगे अभी इस एडिटोरियल में क्या क्या बोला गया है. सबसे पहला इशू जो यहाँ पे हाईलाइट होता है कि जो एक मिशन जा रहा होता है स्पेस में, एक सैटेलाइट ट्रांसफर हो रहा होता है स्पेस में, ऑर्बिट में चल रहा होता है, तो उसको सबसे बड़ा इशू फेस करना पड़ता है, दैट इज द सोलर विंड. दैट इज कि जितना भी एनर्जेटिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आते हैं थ्रू सोलर विंड, वो इस चीज को अफेक्ट करते हैं. किसको? वो हर उस मिशन को अफेक्ट करते हैं जो स्पेस में होता है. क्यों करता है इफेक्ट? क्योंकि अगर आप देखो जो अर्थ है या मून है, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है. उस मैग्नेटिक फील्ड से जो पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट होते हैं, और ये जो क्या बोलते हैं इनको, पार्टिकल्स हैं, यू कैन सी दोज पार्टिकल्स इन द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स. लाइक अगर आप देखो तो ये जो पार्टिकल्स या ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स में आपको दिखेंगे या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको दिखेंगे, तो यू विल सी अ रिलीज ऑफ फोटॉन्स लाइक लाइट. आपको दिखेगी लाइट. जब सूरज डल रहा होगा तो आपको रेड दिखेगा, है ना. या जब आप देखोगे तो समटाइम्स यू विल सी ब्लू. वाई? बिकॉज देर इज नाइट्रोजन विच इज
and there is oxygen which actually are reacting with these electrons and photons. और उसकी वजह से अगर आप देखो तो दिस एंटायर स्पेक्ट्रम इज चेंजिंग। और यही चीज रीजन है नॉर्दर्न लाइट्स का, जिसको हम ऑरोरा बोलते हैं, और सदर्न लाइट्स का। ठीक है, ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा, है ना। जो आप अगर आप देखो तो अगर आप विंटर में या कभी भी अगर आप जाओ तो यू कैन सी दैट नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स इट्स रियली अ ब्यूटीफुल फिनोमिना। ठीक है, अगर आपको देखना हो यू कैन सर्च ऑन दिस इंटरनेट। एंड दिस एलन रेडिएशन बेल्ट which has particles from the solar wind that are now trapped along the planet's magnetic field. And this Allen's radiation belt, जिसमें जितना भी सोलर विंड आता है उसकी वजह से जितना भी वैन एलन्स रेडिएशन बेल्ट है, जितने भी इसमें पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स जो है मूव कर जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दी चार्ज्ड इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स जो सोलर विंड के साथ आते हैं, विच आई शोड यू हेयर। अब इसके साथ साथ एक और इशू है, वो ये है कि जितने भी सैटेलाइट्स जा रहे हैं बाहर, जितने भी मिशंस बाहर जा रहे हैं स्पेस में, उनके पास कोई भी ऐसा नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं होता जो यहाँ पे अर्थ के साथ हमने देखा था केस, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द चार्जड पार्टिकल्स विच सराउंड द अर्थ एंड विच प्रोटेक्ट द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम दी सोलर विंड्स। हाउएवर, जितने भी ये हम मिशंस भेज रहे हैं, सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, स्पेस स्टेशन भेज रहे हैं, और मून बाउंड जो अभी चंद्रयान 3 जा रहा है, they are not having these natural protections, and will be they will see the wrath of these solar winds and they may cause catastrophic failure। अब ये जो फेलियर किसी मिशन का होता है तो कैसे होता है, इसका एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, दैट द डिस्प्लेसमेंट डैमेज। अब ये डिस्प्लेसमेंट डैमेज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डैमेज होता है कि अगर एक चार्जड पार्टिकल इंटरैक्ट कर जाए सोलर विंड के थ्रू, जो चार्ज पार्टिकल आया और उसने इंटरैक्ट किया एक एटम के साथ, और एक इलेक्ट्रॉनिक चिप पे एक बिट चेंज हुआ, अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन गॉट चेंज, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डैमेज, है ना। और जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, जो उस सैटेलाइट को, स्पेस मिशन को रूट करने के लिए कम्युनिकेशन हो रहा था, वो कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा, एंड देन यू विल सी दी फेलियर ऑफ द मिशन। Plus, there are single event transients also, which cause signals being transmitted from the spacecraft to Earth or to the ground station momentarily fluctuating। तो जितनी भी सिग्नल्स वहां से वापस आ रही है या यहाँ से जा रही है, दे विल सी फ्लक्चुएशन, और उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रांसमिशन होगा स्पेस का, जो ट्रांसमिशन होगा इंफॉर्मेशन का, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई कोड है ना, वंस एंड जीरोस में कोड्स आते हैं, और अगर ये कोई कोड है तो इसमें एक बिट अगर चेंज हो गया, वन की जगह जीरो हो गया, तो दिस विल चेंज द एंटायर इंफॉर्मेशन। और अगर आपको इसका एक्चुअल एग्जांपल देखना है तो यू विल सी दैट द एग्जांपल वाज मेंशन्ड हियर, है ना। तो इसी आर्टिकल में देयर वाज दिस एग्जांपल व्हिच वाज मेंशन्ड, और दिस टॉक्स अबाउट ओनली वन बिट गॉट चेंज्ड, एंड उस एक बिट के चेंज होने की वजह से द इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ टर्की गॉट चेंज्ड। ठीक है, और उस चीज की वजह से होता क्या है एक्चुअल में, द इंफॉर्मेशन जो यहाँ से आ रही थी, फॉर एग्जांपल अगर ये कोड होता किसी एक इंफॉर्मेशन का, अगर ये कोड होता जस्ट दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ मून इज नॉट कंड्यूसिव, और एक बिट चेंज होने की वजह से ये नॉट हट गया या इस नॉट की जगह कुछ और आ गया, तो देन all the information, all the future missions of space will be based on this misinformation। So that is the issue here। And third issue is about the multi-layer protection or multiple protections which the scientists take care of, that is the radiation hardened electronics जो वो यूज करते हैं। अब ये radiation hardened electronics क्या होते हैं? ये चिप डिजाइन में यूज होते हैं कि कोई भी ऐसा जितने भी हम इसमें एलिमेंट्स यूज करते हैं, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो उसके ऊपर मल्टी लेयर प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जाते हैं ऑन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ। बट ये प्रोटेक्शन मेजर्स जो है ना, देखो जैसे मैं अभी बोल रहा था ना, आउटवोट द करप्टेड बिट और द टू बिट्स विच आउटवोट, है ना। तो वंस द बिट्स गॉट चेंज्ड एंड द ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी में हैपन देयर, है ना। जो ही बिट्स चेंज हो जाएंगे तो रिडंडेंसी आ जाएगी,
and this will change the entire flow of information. Then comes the hairy environ. अब ये एक और इशू है इस चीज में, that Chandrayaan 3 has to work from -200 डिग्री सेल्सियस to 200 डिग्री सेल्सियस. इतना ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से जो मेटल्स होते हैं, है ना, दे ग्रो व्हाट, दे ग्रो विस्कर्स. अभी विस्कर्स क्या होती है? दी दिस इज दी विस्कर, है ना. ये मेटल के ऊपर वो मेटल जो है ब्रेक डाउन करता है और उसकी वजह से थोड़े से पार्टिकल्स और यू कैन सी अ हैरी लाइक स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑन द मेटल, और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट्स होते हैं और उसकी वजह से जो सर्किटरी होती है वो फेल हो जाती है. तो दीज आर द इश्यूज व्हेन यू टॉक अबाउट दी स्पेस फ्लाइट्स. तो हमने सारा डिस्कस कर लिया, चंद्रयान से लेके ल्यूना 25 और जो हमारा लीड एडिटोरियल आया था. अब इसी लीड एडिटोरियल में एट द लास्ट अगर आप देखो तो साइंस सेक्शन में सुपर कंडक्टिविटी पे फिर से एक छोटा सा एडिटोरियल आया था, एंड दिस अगेन टॉक्स अबाउट द सेम थिंग जो हमने डिस्कस की हुई है, दैट इज -268.9 और -2.275 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है टेम्परेचर. देयर वाज दिस हाइकी कैमरलिन, जिसने, जो डच फिजिस्ट था, जिसने पहली बार मरकरी को स्टडी करते हुए सुपर कंडक्टिविटी का डिस्कवरी किया था. Plus, what is the innate nature of every metal is that it innately has this resistance inside it against the electric current. And this electric current का जो resistance है, उस resistance की वजह से the electric energy and heat gets lost. और energy और heat जब loss हो रही है, तो जो कंडक्टर है, जो इस एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, उस एनर्जी के ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉस हो रही है, और उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वी आर इन दिस क्वेस्ट टू डेवलप और टू फाइंड सुपर कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर एंड एम्बियंट प्रेशर. क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी अभी हम अचीव कर पा रहे हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग दैट जब हम किसी मेटल का टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर देते हैं टू -275 डिग्री सेल्सियस. जब हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उसके बाद वो चीज़ सुपर कंडक्टिविटी में आएगी. बट हमें चाहिए सुपर कंडक्टर्स जो रूम टेम्परेचर पे रहें, सुपर कंडक्टिविटी दिखाएं, जिनकी प्रॉपर्टी रूम टेम्परेचर पे एक्टिव हो जाए. ठीक है. तो की टर्म्स जो सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, first is the zero resistance about superconductors, that is they show zero resistance about on the electricity. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स का जितना भी मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पे देर इज जीरो कंडक्टिविटी. ठीक है. दे कैन मूव विदाउट एनकाउंटरिंग एनी रेजिस्टेंस. Zero resistance. And what is perfect diamagnetism these in the superconductors? It's the diamagnetism in which the material that causes them to create a weak magnetic field in the opposite direction when it's exposed to an external magnetic field. ठीक है. तो जो दो सुपर कंडक्टर्स होते हैं या जो दो एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस कॉजेज देम टू क्रिएट अ वीक मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से अनलाइक दी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो which are attracted to magnetic fields, the superconductors or the magnetic field of superconductors repel each other. ठीक है, दे रिपेल देम. देन व्हाट्स द क्रिटिकल टेम्परेचर? जैसे हम बोलते हैं 275 डिग्री सेल्सियस -275 डिग्री सेल्सियस, है ना. दिस इज अ टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद द कंडक्टर टर्न्स इनटू अ सुपर कंडक्टर एंड इट शोज zero resistance. Then you should also remember Meissner effect. What is Meissner effect? Should go through this. इसका, इन दोनों का डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे ताकि आप इसको नोट डाउन करो और अपने नोट्स में ऐड कर लो. ठीक है. विद दिस आई थैंक यू फॉर बीइंग हियर इनटू दिस डिस्कशन. आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम परफेक्शन आईएएस. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.